Hi everyone, I welcome you all back to Entrance Investigation. This is Sambhav here, and I'm going to teach you in this session. I'll be the instructor for this session. So today we are going to start with the second session of the marathon series, that is J Marathon Quick Revision series. And in this video, we are going to cover two very important and yet ignored topics. One of them is properties of triangle. I guess you can see it at my back. This is properties of triangle. And the second topic is heights and distances. And I hope that you guys will be familiar with what these things, what are the basics of these things. Yet I'll be covering most of the basic concepts. And first of all, let me make some things particularly clear that these properties of triangle, I must say that this chapter, this properties of triangle is more advanced oriented, and this heights and distances is more J-main oriented. Okay, so it is like that J-mains will ask questions majorly from heights and distances, and they won't cover properties of triangles in general. It is a general trend. Although the things may vary, of course they will vary, they might vary in the fourth exam as well. But yes, there will be lesser frequency of the questions has been observed from properties of triangles when it comes to JMN 2021. But yes, there have been questions that have been asked in 2020 on both of these topics, in 2019 on both of these topics. So it is quite likely that anything could happen. So we have to be prepared for that. But yes, what will this lecture be about? I'll just give a brief about that. First of all, we would be covering the basic theory from properties of triangles and heights and distances. I'll cover these two topics are very relatable. And first of all, the properties of triangles, you must be able to understand the theory initially. If you are clear with the theory, then problems will be very easy. You will be able to understand the problems and you will be able to solve them. They are not very difficult or tricky problems, not at all. But for heights and distances, it is more likely because the concepts are very limited and you have to solve some problems in order to get these things. So what we are going to do is we are going to focus more on theory part of properties of triangles, and we'll focus more in questions on heights and distances. Although we are going to cover them fully, and yes, you can refer to more videos that I have put on this channel on these topics particularly. So you can watch them as well. But yes, we are going to start with heights and properties of triangles initially. So how this lecture will go? First, we will discuss the theory about properties of triangles. Then we'll discuss the theory about heights and distances. That is a very limited theory, of course. And then we'll solve the problems related to that, and we'll be done. Okay, and then you will be clear with the. If you have watched the previous sessions as well, and as well this today's session, then you guys will be quite thorough with the trigonometry section, and you can easily score at least 2 questions or 3 questions depending on JMain. Okay, that depends on JMain. What pattern they wish to put. So we're keeping 2 questions. So 2 days, 2 questions. It is quite good. Okay, so I think we can start without wasting much time. Let's start with this video. So this is marathon session, and topics covered: properties of triangle and heights and distances, as I mentioned. Okay, now let us start with the theory of properties of triangles. फर्स्ट फॉर्मूला साइन फॉर्मूला रादर स्टेट साइन लॉ. देखो साइन लॉ में क्या होता है कि फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इफ वी हैव सम ट्राइंगल, हम सबसे पहले एक बेसिक ट्राइंगल नोटेशन, लेट मी मेक दीज थिंग्स क्लियर दैट अगर यहाँ पर हमारे पास ये एंगल है, तो एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली जो होगी, इस साइड लेंथ को हम ए से, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे. जैसे ये एंगल बी है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली साइड जो होती है, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एंड इसको अपन बी से डिनोट करते हैं, और सिमिलरली ये वाली अपनी सी होती है. तो यहाँ पर एंगल आता है और यहाँ पर स्मॉल में उसका साइड मेंशन्ड होता है. दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग दैट वी ऑब्जर्व इन ट्राइंगल्स. Okay, so this is one of the things. Next, what we are going to discuss is we are going to discuss the sine rule. So this is quite simple and this is very easy, this will make things much clear. See, for any triangle ABC, you have to remember this result. And this is a fundamental law that A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C. And
I'm not writing it 2R in this bracket because we are going to get a deeper insight into it once we progress. Okay, तो मैं बहुत ही इनिशियली बताना चाहूँ तो आप इधर तक याद रखेंगे, और कुछ समय में जैसे ही अपन मतलब कंप्लीट कर रहे होंगे इस सेक्शन को, तो हम इसको बहुत फंडामेंटली यूज करेंगे, देन दीज थिंग्स विल बी क्लियर. बट अभी के लिए आप इतना याद कर सकते हैं, ये वाली चीज जो है एबीसी बाय टू डेल्टा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे वंस वी आर डिस्कसिंग दिस आर. What is this r? R is circumradius and delta is area of triangle. We'll be discussing about them, so don't worry. You can initially remember this thing, this as a result. I'm not going into much details on these things. I'll go into separate details in some other videos. And but for current situation what we have, you can remember, I think this you can remember entirely. I don't wish to segregate the two. You can just simply remember it. ठीक है, and what about this thing, you can we will discuss it later, so don't worry. Okay, so this is one of the things. Now next is cosine formula. Very simple, I must say. This is one of the simplest section of trigonometry. कोसाइन फॉर्मूला में क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई ए, लेट से बी और लेट से सी, या व्हाट आई विल टेक इज नोटेशन एज, यहाँ से ए ले लो, यहाँ से बी ले लो और यहाँ से सी ले लो. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइड सी, ये हमारा हो जाएगा साइड बी, और ये हो जाएगा हमारा साइड बे ए सॉरी. ठीक है, तो हमें अगर कॉस ए निकालना है, तो कभी भी जब भी आपके पास कोई दो साइड और एक एंगल दिया हो, दो साइड एक एंगल दिया हो, तो आप या तो साइन रूल लगाएंगे या कोसाइन रूल लगाएंगे. और अगर आपके पास थ्री साइड्स मेंशन्ड है और आपको एंगल निकालना है, तो आप कोसाइन रूल का बहुत यूज करेंगे. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एनालॉजी, और आप इसको मतलब डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं. कैसे रिलेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, ये सारी साइड रिलेशंस है और इससे ये एंगल रिलेट हो रहा है. ठीक है, इन द सिमिलर सेंस अगर आप यहाँ पे देखें, आपको दो साइड्स पता है और अगर आपको कोई एक एंगल का पता है, तो यू कैन फाइंड द सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल. यू कैन डेफिनेटली फाइंड इफ यू हैव फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, because they are in a triangle, so the sum of angles is going to be 180 degree. So I guess you don't need this explanation currently, and this is quite simple. But yes, you must be knowing that why this thing I am talking about, this must not bother you initially, because it is quite trivial. You can understand it. I think so. I think that you can understand it. That is more particular. Okay. अच्छा, प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए अपन थोड़ा सा मतलब यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हमें cos थीटा लिखना है, cos a लिखना है, तो हम इसका लेंथ अपॉन c करेंगे. ठीक है, और इसका लेंथ निकालेंगे x जो है. ठीक है, वो ये वाली लेंथ हो जाएगी b माइनस एक्स, और इससे आपके पास ये चीज है और ये चीज है, इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे, ये h निकालेंगे, इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे, ये h निकालेंगे, और दोनों h को कंपेयर करेंगे, उससे x निकल आएगा. Once you find x, you can obviously cos theta is cos a is x by c. So you can try it on your own. If you face any difficulties, you can ask in comment section. But yes, it is not required that we must go into much detail over it. You can simply remember it. How to remember it? Let me tell you. Okay, I'll tell you everything as I mentioned that we are going to discuss it in detail. So this is A, B and C, this is B, this is C and this is A. Okay, so what we are doing, the angle which we need to calculate, the cosine of that angle is equal to corresponding the adjacent sides that are making that angle. So that is B square plus C square minus the adjacent corresponding side, that is A square, upon divided by twice of the this product. Okay, this is the way you can remember it. ठीक है, एंड दिस विल सी, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जब हम एसओटी या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, दैट दे आर क्वाइट सिमेट्रिक इन नेचर. ओके, the results that you will see, they are quite symmetric. Like you can see a by sin है तो b by sin भी आया, तो c by sin c आया. So these results are symmetric. So the thing is that you must understand these results. That is very important. If you are able to understand one of the result, or if you are able to at least recall one of the result, ठीक है, then the things will be very simple. Like ये वाला आपको समझ आ गया, अब आप बाकी दोनों अपने आप जनरेट कर सकते हैं. That is the symmetry of the system. That is the symmetry and beauty of this mathematics, this triangle mathematics, or I'll say the triangle geometry. This is the beauty of this. So you can just go for it.
Next, a projection formula. Again, a very simple thing to do. Okay, what you need is you need a triangle first of all. To understand this thing, you of course need a triangle. Now, this is our side A, and I can simply, what I can do is I can draw perpendicular from A. Now, what is this? Okay, first of all, I'll mention every aspect of the basic triangle. This is B and this is C, right? Now, let me just write what is this. So, this is angle C, so this is B cos C. And what is this? This is C cos B. Okay, so what is our angle A? Sorry, side length is C cos B plus B cos C. Now, this is very important, but you will find this very easy as well. Okay, it is equally easy and important. Okay, what about we can simply write for another thing, like for B, if I wish to write, then I can write A cos C plus C cos A, and for C I can write A cos B plus B cos C. I guess you guys are able to get these things. These are very simple. Okay, I find them very simple. Okay, so one thing more, how we can, if you wish to justify somebody that yes, I am correct, you can write A as A by sin A. I told you that it is B by sin B. Okay, first of all, and then what you can do, you can just simply do one thing, that you can write this as 2r. As I mentioned in sin law, कि आप इसे याद रख लें फिलहाल के लिए, before we move to this explanation. So A is 2r sin A and B is 2r sin B. ये जो है ना, ये जो नोटेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन अटक सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट यस इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आई स्ट्रेस दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है, दिस इज अ थिंग दैट शुड बी ऑन टिप्स. दैट अगर मुझे रात को 3 बजे भी उठा के बोला जाए कि ए को अगर हमें साइन ए के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, मेरे मुंह जुबानी निकले. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2r. ओके, अब यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट आ गया ना 2r, तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन ए कॉस बी. कॉस बी यहाँ ए आना था. ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा बनेगा. और ये वाली चीज क्या बन गई, साइन ऑफ ए प्लस बी, 2r. और इससे आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो इसे हम साइन ऑफ पाई माइनस सी लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू वापस कितनी इसकी हो जाती है, साइन सी. और हमें पता है कि जो सी का वैल्यू है वो भी 2r साइन सी है. ठीक है, so you can remember this. As a result, this is very beneficial. Okay, so this was another thing that I wish to stress upon, because ऐसी ही चीजें तो याद आएंगी भाई, पेपर में यही तो सब आना है. ठीक है, टेंजेंट रूल में भी आप यही लगाएंगे. देखो, आप ये वाला एक्सप्रेशन पकड़ लो, b माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट ए बाई टू. इसको कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू के फॉर्म में लिख देना, और इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो जब आपको फाइनली मिलेगा तो वो आ जाएगा tan ऑफ b माइनस सी बाई टू. ये इंपॉर्टेंट है, पर जेई मेन में डायरेक्ट सवाल भी मिल सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में है. तो इन जो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया वो ज्यादातर सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में है, तो इसका मतलब है कि वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड बन जाता है, और इसीलिए इन पे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा है कि मतलब इन्हें इग्नोर ना करें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, और दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो जेईई मेन के सिलेबस में लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट सिलेबस देखा, उसमें ये वाली चीजें मेंशन्ड थी नहीं. पर मैं आपको बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही पार्ट है सबसे पहले. एंड मोर ओवर ये वाली जो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दे फॉर्म द बेसिक ऑफ सम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्ट्रेट लाइन एज वेल. तो अगर आपके जेईई मेन में अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, जिसका एक सोल रीजन ये हो सकता है, तो भी यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज ये चीजें हमारे पास कहीं ना कहीं यूज होंगी मैथमेटिक्स में. अभी तो कराते हैं सिलेबस में, तभी हैं, ऐसे थोड़ा है. ठीक है, और अगर ये भी नहीं मानना तो ऐसा मान लो कि एडवांस के सिलेबस में है, क्योंकि उसमें तो है. ठीक है, so don't need to worry about these things. These are quite decent enough. Okay, so these are the things that you must understand from this entire discussion. कि अगर हमें tan ऑफ b माइनस सी, या a माइनस बी लिख देता हूँ, b माइनस सी में लिख चुका हूँ, तो a माइनस बी बाई टू लिखना है, तो आई नो द सिमेट्री ऑफ सिस्टम, तो आई कैन राइट a माइनस बी बाई a प्लस बी कॉट c बाई टू.
ओके, ए माइनस बी के लिए ऐसे आ जाएगा, ये देखो लिखा पड़ा है। तो ये आपको याद होने चाहिए भैया, ये मतलब याद है तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। मान लो आपको कुछ ऐसा पूछ लिया, आपको tan ऑफ ए माइनस बी पूछ लिया, जब आपको cot ऑफ सी बाई टू पता है और आपको दो साइड्स पता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्टली, मेंस में कुछ भी आ सकता है भैया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको ये नेपियर एनालॉजी या टेंजेंट रूल लगा के आप हाफ एंगल निकाल लो, हाफ एंगल निकाल लो। फिर वो हाफ एंगल से आपको फुल एंगल में कन्वर्जन तो कल आपको सिखा ही दिया है वो। तो जब आपने सब कुछ सीख ही लिया है, फिर आगे दिक्कत ही क्या है। कैसे निकालोगे, आप इसको लिखोगे कि ए माइनस बी बाय ए प्लस बी कॉट सी बाई टू हमारा हो जाएगा tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू। और हमें निकालना होगा अगर tan ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हो उसे 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो मतलब ये चीजें काफी सिंपल हैं और मुझे नहीं लगता कि इन पे कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत एक्चुअली है, क्योंकि ये चीजें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने कोर्स को इसी तरीके से तो स्ट्रक्चर किया है कि मैं बहुत ही बेसिक से अच्छे अच्छे लेवल तक भी पहुंच सकूं, ताकि मेंस में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो उसको आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था टेंजेंट रूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूले। तो देखो भैया, हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं सबसे पहले, ठीक है, इनको प्रूव कैसे करना है, मतलब हम पहले थोड़ा बहुत प्रूफ के अंदर जाते हैं बिफोर मूविंग अहेड। तो आपको याद होगा कि साइन ए बाय टू एक है साइन बी बाय टू, एक साइन सी बाय टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम में है सिमेट्री। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अगर साइन ए बाय टू निकाल पाऊँ तो मैं आगे वाली चीजों को लिख सकता हूँ। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या पता है, मेरे को एक रिजल्ट याद आ रहा है कल से, कि अगर मैं 1 - 2 sin² ए बाय टू को लिखूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, cos ए के बराबर। यानी कि 2 sin² ए बाय टू को अगर मैं थोड़ा सा याद करूं तो वो हो जाता है 1 - cos ए। और अगर मैं इधर से 2 भी इधर ले जाऊं तो ये इस तरीके से आएगा। अच्छा, अब cos ए का वैल्यू तो मुझे पता है, cos ए तो मैंने इवेलुएट किया हुआ है, कितना है b² + c² - a²/2bc। मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा, बाकी सब आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि sin² ए बाय टू निकाल लो पहले। तो ये हो जाएगा 1 - cos ए बाय टू। तो 1 - cos ए कितना हो जाएगा, 1 - b² + c² - a²/2bc। तो ऐसा कर लो, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते ही यहाँ वाली जो चीज है ये कितनी आ जाएगी, ये 1 माइनस में चला है सब, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2bc माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन आएगा। ये आ जाएगा a² पॉजिटिव हो जाएगा माइनस ऑफ b² + c² - 2bc बाय 4bc, ऐसे आ जाएगा। तो अब इसको बस सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत सॉल्व कर देता हूँ यार। देखो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, b - c का स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर। ठीक है, तो ये बन जाएगी b - c का स्क्वायर। तो अब इसको आप लिख सकते हो a माइनस ऑफ b माइनस सी टाइम्स ऑफ a माइनस ऑफ b प्लस सी और डिवाइडेड बाय 4bc। तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी टाइम्स, यार अगले पेज पे लिख देता हूँ क्योंकि पीडीएफ पे तो देखोगे आप लोग तो अच्छा थोड़ा लगता है। अच्छा, अच्छी चीजें दे रहे हैं तो फिर अच्छे से देंगे ना। a माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस ऑफ b माइनस सी, ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन 4bc। नाउ कैसे करेंगे, अब इसको आप ऐसे लिख लो कि ये आपको पता है कि अगर मैं इसमें +2 भी कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर पेरीमीटर बन जाएगा, और -2 भी कर दूं, ठीक है, तो इससे ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी -2b, ऐसे कर लो। और इसको आप लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो कि अच्छा ये a माइनस बी माइनस सी बन गया ना, तो आप इसको भी मतलब लिख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो फंडामेंटल आइडिया है वो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, यहाँ b माइनस सी होना था भाई, मुझे लग रहा है, क्योंकि मतलब वो एक सही रिजल्ट बन नहीं रहा था जो बनना चाहिए था।
तो ये b माइनस सी ऐसे आएगा, तो a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी आना था, तो a प्लस बी माइनस सी, तो इसको लिख लो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना c। अब क्या करो, इसको आप लिख लो 2s। क्यों, s क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बचपन में पढ़ा होगा जब आप शैतानी करते थे कक्षा में, ठीक है। और ये बचपन था जब आप 7वीं या 9वीं कक्षा में थे, तो मतलब ये पता होगा, यहाँ से एक 2 कॉमन ले लो, यहाँ से एक 2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। और ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर a बाई 2। तो बस आ गया, निकल गया, सारा सवाल हो गया, ठीक है। अब इसका जनरल तरीका देख लेते हैं कि कैसे याद रखना है, क्योंकि याद भी तो रखना है भाई, पेपर में तो याद रहना चाहिए ना। तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि ये बी सी ए आ जाएगी, ठीक है, सही है, सी ए बी ऐसे उल्टा कर दिया था। तो अगर हमें इसका हाफ एंगल याद करना है, तो साइन ऑफ ए बाई 2 अगर हमें याद रखने का है, तो इसका वैल्यू आप स्क्वायर रूट में ही रहेंगे, ठीक है। आप करेंगे 7, देखो कॉस में पहले 7 हो रहा था, अब साइन में 7 होगा, तो एस माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी, ठीक है। देखो एक चीज इस पे डिपेंड नहीं करती, ये बात इंपॉर्टेंट है कि साइन में क्या है कि हम दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, मतलब ए है तो ए जैसी कोई टर्म है, उससे अपन दूर भाग रहे हैं, साइन में आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। कॉस के लिए बस कॉस के लिए भी वैसे ही फंडा लगेगा। कॉस के लिए कैसे याद रखेंगे, ये ए बी सी है, तो कॉस ए बाई 2 अगर आपको पूछे कोई, तो आप कह दो कि ये बी सी और ये ए, तो आप कह दो कॉस है, तो अब एक में तो हमने दूर कर दिया, देखो एक याद हो गया ना, साइन वाला हो गया यार, तो कॉस में क्या है, एक में तो दूर कर दिया यार, ठीक है। तो दूर कर दिए, तो अब क्या बचा, एस माइनस है। पर ये अकेला सही नहीं लग रहा है, अकेला थोड़ा सा मतलब अकेला अधूरा लग रहा है, तो इसको एक एस से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई किया, एक सिंपल सा लॉजिक है भैया, कि देखो साइन और कॉस में इंटरचेंजिंग हो सकती है, मतलब साइन ए बाय 2 है, तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, एलिमेंटल स्ट्रक्चर है, या डायमेंशन से समझ लो, ठीक है। अगर इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, इसे डायमेंशनलेस करने के लिए यहाँ पर 2 टर्म की मल्टीप्लीकेशन होनी है, अब यहाँ पर एक टर्म की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें दूसरी टर्म की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब क्या है कि हमें क्या है कि अब क्या है कि साइन और कॉस में हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, ये आप थोड़ा सा मतलब थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन रिमेम्बर, और इट इज अप टू यू, मतलब जितना याद रहता है उतना सही है, बट मेरे को लगता है कि इतना काफी रहेगा आपको याद रखने के लिए। बाकी एवर रेडी, यू कैन यूज फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस a by 2 minus 1 and you can evaluate the expression, that is up to you, I'm not going to do that of course, ठीक है। नाउ tan है, तो tan में मुंह फाड़ के 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व मत करने बैठ जाना, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको साइन ए बाय 2 बाय कॉस ए बाय 2 के फॉर्मेट से याद रख सकते हैं। और इसमें क्या है ब्यूटी है कि क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, तो tan में ऐसा आ रहा है, तो इससे याद रहेगा कि डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर आप एक एक्सप्रेशन लिख दो, दूसरे एक्सप्रेशन को एनालाइज कर लो, तो आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात है ही नहीं इसको लिखना। हाँ, तो अब अब देखो tan ए बाय 2 लिख के देख लेते हैं। तो tan ए बाय 2 में अब टर्म क्या आ रही थी हमारे पास, साइन में क्या आ रहा था, देखो बीसी बीसी से कैंसिल हो जाएगा, साइन में क्या आ रहा था, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। अब ऐसा कर लो, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, तो इसको एस इंटू एस माइनस ए से रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ऊपर क्या बन गया, बहुत ही फेमस हीरोन फॉर्मूला, ठीक है, जो आप सभी ने अपने बचपन में पढ़ा होगा जब आप पढ़ते कम थे और मस्तियां ज्यादा करते थे। तो भैया आ गया ना, ये आ गया अपना जवाब। तो जब अपने पास ये आ गया है, उसके बाद तो भाई मतलब लाइफ सेट है, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगले एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, सिमेट्री, अगेन द थिंग इज सिमेट्रिक है, देखो सारे रिलेशंस आपस में सिमेट्रिक हैं, that is again that I have discussed earlier, I don't need to tell you about symmetry anymore, okay, so I think this is done and let's move ahead then, okay, yes, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, जो एरिया होता है ना, एरिया होता है जो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं ए बी और सी, और अगर मुझे एरिया लिखना है,
ये मुझे पता है कि ये साइड होगी सी, ये साइड होगी बी और ये साइड होगी ए। मुझे बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से पता है कि एरिया जो होता है ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैं बस वही यूज कर रहा हूँ इधर। इस हाइट को आपको कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू हाफ ए टाइम्स ऑफ एच हो जाएगा। नाउ एच का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो इस ट्रायंगल को देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एच बाई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बी के बराबर। तो एच हो जाएगा सी साइन बी। तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, और अगला अगर हम देखें तो एच का वैल्यू क्या हो सकता है, बी कॉल बी साइन सी भी तो हो सकता था, तो इसका वैल्यू हाफ ए बी साइन सी भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात है कि अगर यहां से मैं कोई एच डैश बना दूं, पॉइंट से अगर मैं कोई एच डैश बना दूं, एच डैश जो है, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, हमारा बेस हो गया इधर बी, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू हो सकता है ए साइन सी, या इसका वैल्यू हो सकता है सी साइन ए। दोनों ही सेम दे रहे हैं, तो उससे आपको तीन तरह के एरियाज निकल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, व्हाट इज द एंटायर लॉजिक, मुझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप बोल रहे होगे कि यार ये सब तो लिख दिया, कहना क्या चाह रहे हो, तो कहना ये चाह रहे हैं भैया कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। तो आई विल राइट इट वंस, सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कभी भी आपको ये वाली चीज निकालनी है, आपको दो साइड पता है और आपको कोई इंक्लूडेड एंगल पता है, तो अगर आपको लेट से थीटा इंक्लूडेड एंगल पता है और आपको दो साइड पता है और एक ट्राइंगल है, तो आप इसका एरिया लिख सकते हो सीधा हाफ ए बी साइन थीटा। और ये कैसे आया, आप ऐसा करो, यहां से कोई परपेंडिकुलर बना लो, जब आपने परपेंडिकुलर बनाया आपने इसको बेस रख दिया, और इस वाली चीज को हाइट रखने के लिए आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमेशा ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसीलिए ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और इससे ना बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल एक्चुअली क्लियर हो जाते हैं जब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता एरिया कैसे निकाले, वो मतलब हिरॉन फॉर्मूला पता होता है उन्हें, हाफ बेस इनटू हाइट पता होता है, पर उसे अप्लाई कैसे करें इसमें वो नहीं पता होता, तो वो बता दिए। अब आगे हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो सबसे पहले अपन को सरकम सर्कल पता होना चाहिए कि होता क्या है भैया। तो मैं एक ऐसा है, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि इसके कोई एंड पॉइंट्स होंगे ए बी और सी। अगर मैं उन तीनों को मार्क कर दूं, ये पॉइंट, पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री, तो हमें पता है कि तीन पॉइंट से, सॉरी, तो थ्री पॉइंट से हम एक यूनिक सर्कल बनाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में। ठीक है, दैट इज वाई बोलते हैं कि नाइन्थ टेंथ में अच्छे से पढ़ लिया करो। बट चलो कोई बात नहीं, अगर आपने इलेवंथ में पढ़ा है मेरे लिए कोई बड़ी इशू नहीं है, कि आज भी पता चल रहा है तब भी, वैसे तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब एज मिलता है। एनीवेज, यूनिक सर्कल बनता है तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये तीन पॉइंट है तो इनसे एक यूनिक सर्कल पास हो रहा होगा, तो बना देते हैं वो यूनिक सर्कल। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑफ कोर्स आई एम सॉरी फॉर माय डायग्राम, बट हाँ इस तरीके का एक सर्कल बन रहा होगा। इस सर्कल को जो बोलते हैं अपन, इस सर्कल को बोलते हैं अपन सरकम सर्कल। ठीक है, और इसके सेंटर, इसका जो सेंटर है इसको अपन बोलते हैं सरकम रेडियस, सॉरी सरकम सेंटर। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होता है इससे, किसी भी साइड से, वो तीनों मामलों में इक्वल है। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, रेडियस के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये एक सरकम सेंटर है, और इसका जो डिस्टेंस है साइड से उसको अपन बोल देते हैं सरकम रेडियस, जिसका वैल्यू हो जाता है आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अच्छा, एक ट्राइंगल की और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसी मतलब फिगर से मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ।
कि अगर मैं पहले अब सर्कल बना दिया ताकि ट्राइंगल इसमें फिट करना थोड़ा सा आसान रहता है मेरे लिए, ठीक है, तो मतलब कंप्लेन ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, ये तरीका है हर एक बंदे का अपना, मतलब ट्राइंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ए बी और सी, मतलब सर्कल और ट्राइंगल वगैरह की आप कुछ भी कह लो, कि अगर मैं ये कॉर्ड देखो, अगर ये एंगल ए है या एंगल इसको थीटा ले लो, तो ये एंगल 2 थीटा होगा। अगर ये सेंटर है मतलब ओरिजिन है या और सरकम सेंटर है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने छोटी कक्षा में जो भी आप पिछली क्लास से करके आए हैं, पढ़ के आए हैं 9वीं कक्षा में, तो 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो भी एंगल ये वाली कॉर्ड सबटेंड करती है सरकमफेरेंस पे, अगर यहाँ कहीं सेंटर है तो सेंटर पे उस एंगल का दुगना सबटेंड करती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल 2 थीटा होगा। अब चाहे ये वाली कॉर्ड यहाँ ही क्यों ना हो, ठीक है, बस ये मेजर सेक्टर में होनी चाहिए, मेजर सेक्टर सॉरी मेजर सेगमेंट बोलते हैं इसे, है ना, मेजर सेगमेंट में होना चाहिए इस कॉर्ड को। मतलब अगर यहाँ जैसे भी हो तब भी चलेगा, पर ये एंगल होगा थीटा तो ये एंगल होगा 2 थीटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पर आ गई तो मैं बोलूंगा ये वाला लॉजिक फेल हो जाता है उस केस में, और वो नहीं लगता है। आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि मेजर सेगमेंट में होगा तब काम बनेगा, और ट्रायंगल के केस में वो हमेशा ही मेजर सेगमेंट में बैठेगा। तो इसीलिए हमें इस वाली चीज के लिए उतना ज्यादा सोचने की वजह से तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई टोल्ड यू अबाउट इट। तो ये एंगल हो जाएगा 2a। बढ़िया। अब 2a हो गया, और ये वाला एंगल हो जाएगा 2b, और ये वाला एंगल हो जाएगा 2c। तो हमें पता है वैसे भी इन दोनों पॉइंट के अबाउट सभी एंगल्स का सम 360 होता है, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अनदर थिंग दैट आई विश टू स्टेट, कि अगर आप इधर से एरियाज को कंपेयर करें, हाफ आर स्क्वायर साइन 2a, तो एरिया ऑफ दिस एंटायर ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। और अब इसको आप जैसे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है, और दूसरा इस एक्सप्रेशन को एक सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन की तरफ ले जाएंगे तो ये साइड का रेशो कुछ ऐसा बनता है। तो थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ कि हाफ आर स्क्वायर, आप ऐसा करो साइन 2c को एज इट इज रख दो और साइन 2a प्लस साइन 2b को लिख दो। तो साइन 2a प्लस साइन 2b को अगर मुझे लिखना है तो मैं उसे ऐसे लिख देता हूँ साइन 2a, और मुझे क्या साइन 2b को ऐड करना है। तो आपने पढ़ा होगा, कल तो पढ़ा है CND फॉर्मूला। तो 2 sin a+b cos a माइनस बी बनेगा ये। अच्छा, ये वाली चीज क्या बन जाती है, 2 sin c cos a माइनस बी, ठीक है। या फिर आप इसे एज इट इज रख लो, और इसको साइन 2c को आप 2 sin c cos c लिख लो, ठीक है। मतलब इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने इसको ऐसे लिख लिया, फिर इस वाली चीज को आप नेगेटिव करके लिख लो। तो ये ऐसे ओवरऑल जो बनेगा वो हाफ आर स्क्वायर 2 sin c, अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनेगा कॉस ऑफ a माइनस बी, सॉरी विद नेगेटिव साइन बनेगा ना, एक नेगेटिव साइन भी तो आएगा बीच में, और यहाँ पर प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी बनेगा। ये नेगेटिव साइन क्यों आया ये समझ आ रहा है ना, पाई माइनस थीटा किया है, साइन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किया है, सॉरी ये तो सही है ना। और हाँ, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ कि साइन ऑफ पाई माइनस a प्लस बी किया है, तो नेगेटिव साइन आएगा, मैं उल्टा करके, ओ सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आया है, ये क्या हो गया, मैंने दोनों जगह पे सेम गड़बड़ कर दी। तो ये हमारे पास ये वाली चीज नेगेटिव आएगी, ये वाली पॉजिटिव आएगी, तो इसको नेगेटिव कर लो और इसको पॉजिटिव कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 sin c। अच्छा, इससे क्या आएगा, -2 sin माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि b, तो साइन b, 2 sin b और 2 sin a, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों को एक और बात पता है कि इसी से अपन ने ये चीज जनरेट करी है। तो ये 1/2 r² 2 sin c sin b sin a बन जाता है।
ठीक है, ये सॉरी 8, यहाँ पर 4 4 r² आना था। मतलब थोड़ा मतलब कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, मैं मतलब बस आपको छोटी मोटी एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ कि हाँ, अब इस चीज को सवाल को सॉल्व करने के लिए आप इस वाली चीज का डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास a+b+c 180 है, तो इस वाली चीज का एक्सप्रेशन, इस वाली का वैल्यू आ जाएगा sin a sin b sin c। और मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया बाकी? आई थिंक ये आएगा, ऐसा कुछ आएगा मतलब, है ना? इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा ना। यहाँ से 2, यहाँ से एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं तो वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे 4 आना चाहिए था। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, तो यहाँ 2r² ऐसे आएगा। तो मतलब वो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आ रहा है, तो यू कैन रिमेम्बर दिस एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, और बाकी तो मतलब आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर कि इसको आप 1/2 r² करके लिख सकते हो। फिर आप एंगल्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अच्छा, एक और बात कि ये जो सरकम सेंटर होता है ना, अगर हम जैसे मतलब कोई भी सरकम सेंटर से अपन कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, या बीसी पे, अगर जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मान लो ऐसे कोई ट्राइंगल है, और हम इस पे क्या करें कि एक कॉर्ड ड्रॉ करें, तो ये बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। ये सभी ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा है। अब बस यही बात हो गई कि ये सेंटर से पास हो रही है, कॉर्ड जो भी सेंटर से पास हो रही है वही बाइसेक्टर बनेगी। ये परपेंडिकुलर भी होती है और ये बाइसेक्ट भी करती है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला काम हो रहा है। और जैसे ही अपन को पता लग गया कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला काम है, तो अपन के दिमाग में डायरेक्टली फील सा आ गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे जैसे बन रहा है, सर्कल के सेंटर से बन रहा है। तो सर्कल का सेंटर किस में हम कंसीडर करते हैं? सर्कल में, सर्कम सेंटर में। तो हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो वो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों में करे ड्रॉ, तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा सर्कम सेंटर बनेगा। और वर्टेक्स इज नोन एज सर्कम रेडियस, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑफ कोर्स, सॉरी, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द टू, हाँ वो मतलब क्वाइट ऑब्वियस, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। अच्छा, एक और रिजल्ट कि डेल्टा को अपन ABC/4R भी लिख सकते हैं। और इसको ये कहाँ से आया, ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि भैया कहाँ से आ रहा है। मैं कुछ, एक मिनट ना, एक मिनट, हाँ सही है। ABC/4R कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ तक आपने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1/2 r² टाइम्स ऑफ, आ गया 4 sin a sin b sin c, sin a sin b sin c। अब इसको क्या लिख दो, sin a को लिख लो a/2r, sin b को लिख लो b/2r, sin c को लिख लो c/2r। आपको पता है ये वाला वैल्यू डेल्टा के बराबर ही है, तो जब आप इसको लिखोगे तो इसको आप रिप्लेस करोगे a/2r से, इसको b/2r, और इसको c/2r से, तो r² और एक r बच जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16 बन रहा है और न्यूमिनेटर में 4, तो 4 और ABC। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ भी हो गया साथ साथ। हालांकि मैं इसके प्रूफ में जाना नहीं चाहता था, बट चलो अच्छा है अगर प्रूफ हो गया और आप लोगों को पता लग गया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। ये याद रख लेना, बस फॉर्मूला याद रखो तो वो बहुत बहुत ही बढ़िया है। नोट कर लेना सारे फॉर्मूलों को, एक एक कागज पे, एक शीट पे नोट कर लेना। ठीक है, मैं मेंस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। एडवांस, वैसे तो इतनी थ्योरी एडवांस में भी नहीं पूछते, अब तो काफी सिंपल सवाल पूछने लग गए हैं, बट हाँ मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो इन सर्कल क्या हुआ, सर्कल के ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल बन रहा है, तो दैट इज इनसाइड द ट्राइंगल, सो विल कॉल इट इन सर्कल। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ मुझे पता है कि ये वाले, ये टेंजेंट होगी ऑफ कोर्स, अगर इन सर्कल है तो ये स्मॉल आर हो गए। ओके, ये हमें पता है और ये हमें पता है। ये जो स्मॉल आर है इसको अपन इन रेडियस करके लिखते हैं, इन रेडियस होता है।
ठीक है। अब हम सोचते हैं कि ये कैसे बनेगा, तो आप लोगों को पढ़ाया होगा कि अगर हम इस ट्रायंगल, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये एंगल C/2 हो जाएगा और ये एंगल C/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है। दिस इज बाइसेक्टिंग द एंगल। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है। इन सर्कल जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की तरह बनाएगा आपको जब आप उसे साइड से जोड़ेंगे। और इसका लॉजिक बता देते हैं आप लोगों को कि भैया आप खुद देखो कि यहाँ पर सबसे पहले ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज दे आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और तीसरी बात, ये साइड कॉमन है। तो एक साइड कॉमन है, उसको एक साइड रेडियस के बराबर है, दो मतलब दोनों ट्रायंगल में, और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वजह से है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस से आप कह सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। और इनफैक्ट ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, जो कि आप वैसे भी देख सकते हैं कि 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस C/2 और ये 90 माइनस C/2 बनेगा, और ये ओवरऑल 180 माइनस C बनेगा। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट यू गाइज मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं फास्ट जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं फास्ट जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए, बट yes, this is the thing that you have to consider. ठीक है, you have to bear with it. You can slow down the speed, it is up to you. ठीक है, but it is quite important कि मैं इसको पेस पकड़ूं इस समय। this is very important right now, whatever is going on. okay, anyways, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये और ये हो गए बराबर, तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर का काम कर गया। तो कहाँ पर एंगल बाइसेक्ट हो रहा होगा? जहां पर कॉन्ग्रुएंसी बन रही होगी। तो ऐसा किस में होता है? जब सर्कल के अंदर आ जाता है। तो ये आपको विद प्रैक्टिस आप जब याद रख लोगे, इंटरनल इन सर्कल तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अच्छा, अब हमारा क्या होगा? लेंथ ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर क्या होगा भैया? तो अपने दिमाग में आया कि लेंथ ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर इज आर प्लस दिस लेंथ। और इस लेंथ को निकालने के लिए आपको आर का, ये एंगल है C/2, तो ये आर क्या हो जाएगा? आर बाय साइन C/2 आएगा, यानी कि आर कोसेक C/2 आएगा। तो अगर आपको एंगल पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, वन अनदर थिंग दैट यू गाइस मस्ट नो इज दैट आर का जो वैल्यू होता है वो डेल्टा अपॉन एस के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा 2019 एडवांस्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, जहां तक मुझे याद है। तो ये एक फॉर्मूला है जो भूल जाते हैं बच्चे। और बाकी तो आई थिंक इज क्वाइट क्लियर कि हमें पता है कि अगर, ठीक है, हम थोड़ा सा इस पे और मैनिपुलेशन कर लेते हैं अगले पेज पे, ताकि मतलब ये चीजें, मतलब ये देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक बार पढ़ो पर अच्छे से पढ़ लो बस, इसीलिए मतलब उठाए गई हैं। और वैसे भी मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों का पेपर भी होगा, तो वो थक भी गए होंगे। तो ऐसे में इस टाइप की चीज को पढ़ना तो काफी सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। ठीक है, अगर मैं इस वाली साइड को x ले लूं तो ये भी x हो जाएगी। अच्छा, तो ये वाली क्या हो जाएगी? a-x, तो ये वाली हो जाएगी a-x। और ये वाली कितनी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी c-x, तो ये हो जाएगी c-x। और a प्लस सी माइनस 2x का वैल्यू तो b के बराबर है। तो इससे आपको x मिल गया, इससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? a प्लस सी माइनस b/2। ये वाली साइड मिल गई ना। अब क्या है, आपको ये पता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, आर को निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज बता दी जाए, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो रिलेशन है, आर जो है वो डेल्टा बाय एस है, और ये 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, इन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय। मैं इसके थ्योरी पोर्शन यानी कि प्रूफ बेसिस पे अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि भाई फालतू में दिस इज अ वेरी हेक्टिक एक्सरसाइज एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट यस, अगर आपको इतना याद है देन आई एम मोर देन हैप्पी। बस इनको याद रखना, बस दिस इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट।
लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कहाँ से आता है, देखो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड एक नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका इनसाइड से कोई रिलेशन नहीं है। मीडियन में क्या होता है, मीडियन में होता है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे तब मीडियन बनेगा। तो मतलब अगर ये ए बी सी है तो ये a/2 है और ये a/2 है, ये एंगल आपको पता है, ठीक है, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है। अब कोसाइन रूल वगैरह लगाकर यहाँ, अच्छा तो ये साइड पता है, ये सी है, ये साइड पता है, ये बी है। तो जब आप कोसाइन रूल लगाएंगे हाफ इस पे, आ, ये इसको साइन ही लगेगा ना, हाँ इसको एक्स ले लेना ना, तो आपको यहाँ वाली आपको ये साइड निकालनी है, आपके एंगल है। चलो करके दिखा देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा, हमें क्या पता है कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू जो भी है, कॉस सी का वैल्यू कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज ए बी। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से लेंथ ऑफ मीडियन मिलेगा, लेंथ ऑफ मीडियन एक्स, ठीक है। अच्छा, ऑल्टीट्यूड को करने के लिए भी बहुत सिंपल है, आप क्या कर लो, प्रोजेक्शन रूल लगा लो। एक तो ये अगर ए से ऑल्टीट्यूड, आपको इसका लेंथ एल चेक करना है, ठीक है, आपको ऑल्टीट्यूड वगैरह के फॉर्मूले याद नहीं रखने होते ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये सी है, ये बी है, ये आपको एंगल पता है, तो ये आपको साइड पता है, ये आपको साइड पता है, और क्या ही चाहिए। अगर आपको ये साइड पता है, आप इसका बस एक कॉट ले लेना है और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी, राइट। सॉरी, इसको हम tan बी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज याद रख लेना, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो चीज है ये आप निकाल सकते हो, मुझे लगता है कि ये वाली चीज निकाली जा सकती है, बट ये वाली जो चीज है ये नॉर्मली याद नहीं रहती है, तो इसको याद रख लो। और क्या, सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने वाला, ये याद रख लो। ओके, अब आते हैं भैया ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट पे, और बहुत ही बेसिक पीडल ट्राइंगल का एक इन्होंने जिक्र किया है, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि दिस इज आउट ऑफ एडवांस सिलेबस करंटली, बहुत कम पूछा है, मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट बनाना है, बनाने को वो कॉन्सेप्ट बन गया है। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब बाउंड्री पे आ जाता है, इनफैक्ट मेज में तो बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा, बट एडवांस में तो मुझे चांस नहीं लगता। What is important is that I tell you the meaning of ortho center, so I'm going to tell you that. ऑर्थो क्या है, ऑर्थो सेंटर है परपेंडिकुलर, ऑर्थो मीनिंग परपेंडिकुलर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। यहाँ से आपने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, जैसा कि मैंने बताया ऑल्टीट्यूड का इस साइड से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से आपने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और यहाँ से आपने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ओके, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, this is denoted by h I guess, and yes this is ortho center that you must know, ठीक है। एंड अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने इसका KLM, यहाँ पर जहाँ पर इसके पॉइंट्स और इंटरसेक्शन बने, इन तीनों पॉइंटों को जोड़ के इसने एक ट्राइंगल बना दिया, तो उसका नाम बन गया पीडल ट्राइंगल, ठीक है। बस इतना जिक्र करेंगे पीडल ट्राइंगल पे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपको निकालना दिखा देता हूँ, एक एक का निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। अच्छा, तो इसने कहा है कि किसी पॉइंट से निकाल लो, लेट्स से मैं ए से तो हर बार निकालते हैं, इस बार बी से निकालते हैं, ठीक है, फिगर भी वैसा बनाया हुआ है, तो ये हमें ये ग्रीन वाली लेंथ निकालनी है, मान लो, ठीक है, मान लो आई हैव टू कैलकुलेट दिस ग्रीन वाली लेंथ। हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस ग्रीन वाली लेंथ, फॉर दिस मुझे बहुत सारी, देखो इस ट्राइंगल की बहुत ही स्पेशल बात क्या है, इसमें यहाँ वाली हर एंगल को 90 का दर्जा दिया गया है, और क्योंकि वो है, तो अगर हम इसको पूरे इस ट्राइंगल को लें, व्हाट आई एम ट्रेकिंग इज ट्राइंगल BLC, तो इस ट्राइंगल को लें तो ये वाला जो हमें पता है, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो लेंथ है ये A है, ओके। अनदर थिंग दैट आई नो कि अगर ये एंगल, अगर हम पूरे ट्राइंगल को देखें तो अगर ये एंगल C है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस C, ठीक है।
अच्छा, फ्रॉम प्रोजेक्शन फॉर्मूला मुझे पता है कि ये वाला एंगल है बी, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, सी का कॉस विद बी। ठीक है, सही चल रहा है ना, अभी तक सब सही होगा। और ये सी कॉस बी आपको पता है। अब आपको निकालनी है लेंथ एक्स, मान लो इसे। तो एक्स हम एक्स को सॉरी, तो ये वाली लेंथ है सी कॉस बी, तो सी कॉस बी अपॉन एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस सी। क्यों? क्योंकि हम इस ट्राइंगल का जिक्र कर रहे होंगे उसमें। कौन सा ट्राइंगल, बी एच के ट्राइंगल में, बी एच के सॉरी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू इससे आ जाएगा cos सी कॉस बी अपॉन साइन सी, और c बाय साइन सी का वैल्यू तो होता है 2r, डिस्कस्ड अर्लियर, तो बन गया ना 2r cos b। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको याद रख लेंगे, इसको सभी भूल जाएंगे। इसको भी कैलकुलेट करो ना यार, इसको कैलकुलेट क्यों नहीं करते, इसको साइन में रख लो, साइन में रख लो। ठीक है, तो इसको साइन में रख लेंगे, तो ये जो हमारे पास आएगा h, सॉरी ये के एच का जो वैल्यू है, तो ये आ जाएगा एक्स साइन 90 माइनस सी, तो यानी कि आ जाएगा एक्स कॉस सी। अच्छा, और x का तो हमने अभी भी जिक्र किया कि ये वाला वैल्यू कितना है, 2r cos b, तो ये आ जाएगा 2r cos b cos c। अब बात बताऊं क्या है, कि ये के एच क्या है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले के लिए है। मतलब मैं इसे एक बार और क्लियर कर देता हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, और मैं सिर्फ अब एक के पर्सपेक्टिव में बोलूंगा, इसके पर्सपेक्टिव में, यहाँ कहीं मान लो ऑर्थो सेंटर है एच, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी। ये वाली जो लेंथ है, ये मुझे पता है ये हो जाएगी 2r cos a, और ये जो बची कुची लेंथ है ये हो जाएगी 2r cos b cos c। ठीक है, तो बची कुची लेंथ उसको अलग रख देना, उसके लिए अलग एंगल चलेगा और इसके लिए अलग एंगल चलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो तीन थोड़े बहुत केस हैं। तो अगर a cos b इज इक्वल टू b cos a हो जाए, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको 2r लिख लो, 2r साइन ए, और उसको लिख लो 2r साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी। तो इससे आपको एक बहुत ही सिंपल बात है कि ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इसके लिए ए माइनस बी को एन पाई होना पड़ेगा, और किसी ट्राइंगल के लिए ए माइनस बी तो पाई होने से रहा, तो ए माइनस बी को 0 ही होना पड़ेगा, तो ए का वैल्यू बी के बराबर ही होना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर a cos a इज इक्वल टू b cos b हो जाए, तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ a cos ऑफ a का वैल्यू जो है वो साइन b cos b हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टेप खा रहा हूँ ताकि आप लोग अपना भी दिमाग लगाएं, ऐसा नहीं है कि वीडियो ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 2b के बराबर। तो 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस माइनस 1 रेज टू द, सॉरी दिस इज 2b एंड दिस इज n पाई। वो भाई साहब जस्ट अ मिनट, तो दिस इज n पाई। अच्छा, अब ट्रायंगल के लिए या तो ये वैल्यू 0 होगा, अगर n का वैल्यू 0 हो गया तो ये आइसोसेलेस बन जाएगा, और अगर n का वैल्यू लेट से 1 हो गया, इसमें अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2b, तो a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 2। तो ये आइसोसेलेस भी हो सकता है या राइट एंगल भी हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया। अच्छा, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन इवेल्युएट दिस, आई गेस कि आपने एक को रख दिया और फिर उसको दूसरे को कंसीडर कर लिया, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है एक के लिए तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 रख लो। ठीक है, इस वाले को देख लो, ये आसान है, इसको 0 रख लो। क्यों? क्योंकि हमने c को 90 डिग्री रख लिया, तो इसका 0 हो गया। अब cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 90, सॉरी साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर आउट कर देता हूँ, सो दैट अगर आपको रेफर करना हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप ये निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूला आपको याद है, 4r, सॉरी स्मॉल r इज इक्वल टू 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2।
ठीक है, एक ये है, और यहाँ पर ये R1 R2 R3 इसके पीछे मत पड़ो। ये एक्स सर्कल, एक्स सेंटर, एक्स सर्कल का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, कोई एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा उस पर दिस इज नॉट रेलेवेंट टू मी, सो आई हैव लेफ्ट इट सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जैसा कि हमने पहले जिक्र कर लिया था कि तीन एंगल निकालने के लिए अपन, तीन साइड अगर हमें गिवन है तो तीन एंगल निकालने के लिए अपन कॉस रूल यूज करते हैं। दिस इज जस्ट रिवीजन फॉर दैट। अच्छा, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल पता हो तो आप यहाँ पर टेन है और वो वाला रूल लगा सकते हैं, ए माइनस बी। ये सब हम जिक्र कर चुके हैं इन चीजों का, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें अब आपको ज्यादा दिक्कत होगी। और जो थर्ड केस है, दिस बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि यहाँ पर a इज लेस देन b साइन a है, तो यहाँ पर a बाय साइन a विल बी लेस देन b, क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल के लिए तो साइन a पॉजिटिव ही रहेगा, तो डिवाइड कर सकते हैं और इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, a बाय साइन a का वैल्यू किसके बराबर होता है? b बाय साइन b के बराबर। तो b बाय साइन b, इससे हमारे पास b बाय साइन b लेस देन b आ गया, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि साइन b का वैल्यू इज ग्रेटर देन वन। अबे तौबा तौबा, साइन बी का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गया भैया, साइन बी वन से बड़ा कहाँ दिखा दिए, तो ऐसे में ये नो ट्राइंगल एग्जिस्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये याद रहेगा, क्योंकि मुझे आज तक नहीं हुआ, मैं तो देख के बता रहा हूँ भैया कि ये ऐसे हो सकता है, तो इसका ये लॉजिक है। अगर हमारे पास ए का वैल्यू भी साइन ए के बराबर है, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि इस वाली चीज को अगर हम टू आर साइन ए लिख दें और इसको अपन टू आर साइन बी लिख दें और साइन ए लिख दें, तो इन दोनों, इन फालतू फालतू टर्म्स को कैंसिल करके साइन बी का वैल्यू वन हो गया। यानी कि ये क्या है, वन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एग्जिस्ट्स विद एट लीस्ट वन एंगल दैट इज राइट एंगल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, तो हमारा यहाँ तक एसओटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें बात करनी है हाइट एंड डिस्टेंसेस पे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे। तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें थ्योरी पोर्शन बहुत लिमिटेड है और हमें ज़्यादातर सॉल्विंग पे डिपेंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सॉरी, बिफोर दैट हम इसकी एक बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं कि अगर, देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कोई पॉइंट ले लो ग्राउंड पे, या मैं लेट्स से कोई बंदा है, ए पर्सन है, वो ग्राउंड पे बैठा है। ठीक है, ऐसा है कि दो सिनेरियो हैं कि यहाँ पर है वो तालाब। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर है लेक। ठीक है, तो लेक में क्या है, वो नीचे कोई मछली देख रहा है, ऊपर क्या है, वो पंछी देख रहा है। मैं पंछी बना देता हूँ यार। नीचे वो मछली देख रहा है, ठीक है, तो नीचे मछली देख रहा है और ऊपर वो पंछी देख रहा है। या ड्राइंग तो भाई तंग है भैया, आप क्या बोले, ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, अरे ये तो भूल ही गया मैं। नीचे मछली देख रहा है, ऊपर पंछी दिखा देते हैं। ठीक है। अरे ठीक है, तो अब क्या है कि जब किसी बंदे को ऊपर देखना पड़े तो उसे एलिवेट करना पड़ रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मुझे आई एम श्योर कि पढ़ा होगा। और कोई अगर नीचे देखना पड़ जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यही चीज थ्योरी है, बस इतनी थ्योरी है, और अब बाकी आपको ट्राइंगल्स बनानी आनी चाहिए और लॉजिक लगाना चाहिए। ठीक है, बेटर रहेगा कि हम इस प्रॉब्लम्स करें, बिकॉज इट इज मोर important to solve problems rather than doing all this mess around. Okay, let's start. Let us do some problems now. तो चलो भाई, दो बार आ गया। चलो, अच्छा है। Okay, first question. A pole stands vertically inside a rectangular park ABC. हमने क्या किया, एक ट्रायंगुलर पार्क बना हुआ है ABC। पोल क्या है, अंदर है इसके, ऐसे। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ट्रायंगल हमारा ग्राउंड पे है और पोल हमारा ऐसे जा रहा है। मतलब ऑफ कोर्स ये सभी समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी इज 2, अच्छा सॉरी ये रह गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ईच पॉइंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ईच पॉइंट इज इक्वल टू पाई बाय 3। क्या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन में जो लगनी थी, ये पाई बाय 3 है। अच्छा, इफ रेडियस ऑफ सर्कल व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पोल, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये ऐसा प्रॉपर्टी होती है, इसको मतलब कोई लॉजिक मुझे नहीं पता है इसका वैसे सही में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे ये पता है कि यहाँ से अगर पाई बाय 3 हर साइड से पाई बाय 3 तो वो काफी सिमेट्रिक सा फिगर है, और क्योंकि सिस्टम में सिमेट्री है तो हमें पता है कि ये वाली जो लेंथ होगी ये आर के बराबर होगी, ये वाली आर के बराबर होगी, ये वाली आर के बराबर होगी, कि इसी के ऊपर अगर यहाँ पर हर हर तरफ से एंगल पाई बाय 3 है, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा 90 है और ये पाई बाय 3 है, तो ये वाला जो नीचे वाला लेंथ हो गया ये आर हो जाएगा और ये हमारा हाइट एच हो जाएगा, तो एच अपॉन आर इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, tan 60 दैट इज √3। नाउ एच का वैल्यू कितना हो जाएगा इसी से 2√3, सो 2√3 हमारे पास आंसर है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन एग्जाम recently only, so this is this is a problem from that only. Okay, so this is our next problem. Two vertical poles are 150-meter apart. So we have been given two vertical poles, they are 150-meter apart, and height of one is 3 times that of other. So I'll call it this as h and other as 3h. If from the middle point of the line joining their feet, let me call this as A and this as B. Then the midpoint of this line, I will call this little point, such that these two are equal. Yes, so A and B, तो यहाँ पर क्या है 150 मीटर अपार्ट है, दिस इज गिवन, which means that ये 75 मीटर हो गया। Now what is observed that अगर that these angles are complementary, which means अगर ये थीटा है then this is 90 minus theta, ठीक है, observer finds the angles of elevations to be complementary, then the what is the height of shorter pole, तो मतलब we have to find h, so this is quite an easy problem I guess. So 3h by 75 का वैल्यू क्या हो गया, tan of 90 minus theta। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, h by 75। इसको सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि इससे क्या बन गया 3h by 75 टाइम्स ऑफ h by 75, इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ गया, तो h का वैल्यू आ गया 75 स्क्वायर बाय 3, तो ये कितना, h का वैल्यू आ जाएगा 75 अपॉन √3, सॉरी h स्क्वायर का वैल्यू आएगा तो h का वैल्यू आ जाएगा ये, तो दिस इज 25√3, डी ऑप्शन मैचेस। क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम। अभी ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 क्यों आया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बनेगा और tan थीटा बनेगा, तो जब भी कॉट थीटा और tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वह 1 बनता है। तो ये जो चीज़ है ये आप प्रोजेक्टाइल्स वगैरह में भी यूज़ करते होंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है प्रोजेक्टाइल में, फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स करके एक सेक्शन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक टाइप का प्रॉब्लम होता है कि एक थीटा में फेंका एक 90 माइनस थीटा में फेंका, तो उसमें कुछ मैक्सिमम हाइट वगैरह का रिलेशन निकालने में हेल्प करता है। तो यस, दिस इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। लेट अस मूव अहेड, मुझे याद नहीं है एक्चुअल में, पता नहीं काफ़ी समय हो गया ना रिवाइज किए हुए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए टू द ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है उससे जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। अच्छा, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड एट द स्पीड ऑफ दिस एन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, तो ये कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है, तो लेट्स से इनिशियली भी इसकी हाइट एच है तो फाइनली भी इसकी हाइट एच होगी। ये इसने 10 सेकंड में डिस्टेंस कुछ ट्रैवल किया, 20 सेकंड में ट्रैवल किया होगा, आई कॉल इट एज D20, ठीक है, एंड इट इज फ्लाइंग एट स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आवर। हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखते हुए, यार ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मतलब उसका क्वेश्चन है यार, ये गलत बात है। 9 9 9 से 2 से चल 9, एक मिनट,
2 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, हाँ 9 से जाएगा ना, ये 9 4 3 7 2 9, हाँ 18 से चला जाएगा। 18 टू 36, डिविजिबिलिटी ट्रिक लगा रहा हूँ, 9 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बने, 2 से तो हमें पता ही है। तो 18 टू से 36 और कितना बन गया ये 4 और 7, 18 4 से 72। तो 24 इंटू 5 ये कितना हो गया 120 मीटर पर सेकेंड। तो D20 का वैल्यू कितना हो गया 20 इंटू 120, 2400 मीटर। Oh, nice. So this value is 2400 and this value is, let's say, x. Now I know that this final inclination, again this is equal to 30 degree. तो इसमें भी अपन शायद वैसे वही वाली चीज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो h बाय एक्स का वैल्यू पर इसमें लगाने का फायदा नहीं होगा, देख लेना √3 है। और h बाय एक्स प्लस 2400 का वैल्यू जो है वो आएगा 1/√3। प्रोडक्ट कर लोगे पर आपको दो वेरिएबल ही मिलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। What you can do is x को आप लिख लो h/√3, ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा h प्लस, सॉरी कहाँ आ गए हम, हाँ तो ये आ जाएगा h/√3 प्लस मच, दिस इज 2400, राइट। तो इसका वैल्यू कितना है 1/√3 के बराबर है, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं की, नहीं सब सही है। तो बस इसका वैल्यू अब इससे कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 3h आ जाएगा। इससे कैसे आएगा देखो, अरे मैं ज्यादा ज्यादा शॉर्टकट्स लगा रहा हूँ तो मतलब वो आदत हो जानी चाहिए, जेई मेन देने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको स्पीड बेस्ड रहना पड़ेगा, तो मैं भी बस मतलब उसी टाइप के फॉर्मेट में पहुंच गया हूँ आजकल। h प्लस 2400 √3 हो जाएगा 3h के बराबर, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 √3, ठीक है। ये ऑप्शन मैच कर गया, बढ़िया, ये समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so this is something interesting. Given that this is equal for a triangle for as with the usual notation, then what is the ordered value of this triplet? ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो b प्लस सी इसने दिया 11, मतलब b प्लस सी बाय 11, इसका वैल्यू कितना है c प्लस ए बाय 12, इसका वैल्यू है a प्लस b बाय 13। cos a इज इक्वल टू cos b इज इक्वल टू cos c, मतलब ऑफ कोर्स अल्फा बीटा और गामा से डिवाइड वगैरह करके हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा। सोचना क्या है, देखो एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, देखो cos a cos b cos c में तो हमें एक ही तरीका पता है कि cos a का वैल्यू अपने को पता है b² प्लस c² माइनस a² बाय 2bc होता है, और उसके लिए हमें चाहिए साइड्स। साइड्स का हमें एक प्रोपोर्शन सा दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इस रिलेशन से साइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको कोई कांस्टेंट रेशियो के मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, दैट विल बी मोर ग्रेट। तो b प्लस सी का वैल्यू 11 लेमडा हो गया, c प्लस ए का वैल्यू कितना हो गया 12 लेमडा, और a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 13 लेमडा, ठीक है। अच्छा, एक थॉट और आया कि इन तीनों का सम से क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बनेगा, आप चेक कर लेना। 12 1 13, 23 और 13 बन जाएगा 36 लैम्डा। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखो, हम तीन इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीका दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर आपने ये चीज वैसे डायरेक्टली नहीं देखी होगी तो दिस विल लुक मतलब डिफिकल्ट, बट यहाँ से आपको a का वैल्यू दिख रहा होगा 7 लैम्डा है, b का वैल्यू कितना दिख रहा होगा, सी बी का वैल्यू यहाँ से दिखेगा 6 लैम्डा, और सी का वैल्यू कितना दिखेगा 5 लैम्डा। अच्छा अच्छा, तो अपने को cos a cos b cos c का एक रिलेशन पता है, तो अपन cos a के लिए लिख लेते हैं, तो पहले cos a लिख लेते हैं, तो दैट विल बी b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc, और ये λ² से λ² कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। तो आप एक तरीका ऐसा है कि आप लैम्डा को 1 रख के ही कर लो, ठीक है, और आपके आंसर निकल आएंगे, ठीक है। एक ये तरीका है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 6² 36 और 5² 25, तो 36 प्लस 25 कितना हो गया भैया 41, नहीं सॉरी 61, 61 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा
51 12 12 by 12, तो ये आ जाएगा 1/5। तो cos a का वैल्यू इज 1/5, सो दिस इज 1/5 अल्फा इज इक्वल टू, यार आगे अगले पेज पे लिखता हूँ ना, cos a आगे 1/5। नाउ लेट अस फाइंड cos b। So this is c square plus a square, that is c square plus a square, that is 25 और 49, 25 plus 49 minus b square 36 upon twice of 5 into 7, राइट। सही है। तो ये आ जाएगा, तो इससे कितना आ जाएगा, 25 49 कितना हो गया, 54 64 74 74 में से 36 गया तो 38, राइट। 38 अपॉन 5 इंटू 2 10 और 7 70, जस्ट लेट मी कंफर्म। तो ये 19/35 आ रहा है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ ना, मतलब अच्छा नहीं लगता बाद में अगर गलत हो जाए तो बदनामी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 38 ही लगा है, 38 36 74 बन रहा है ना, इन दोनों का सम देख लो। हाँ 74 बन रहा है, ठीक है। 36 38 सही बन रहा है, 19/35 आ रहा है कॉस बी। अब कॉस सी को देखो भैया, कॉस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो दिस इज 7 into 6 से 49 और 36, 49 55 85 85 में से 25 गया 60 अपॉन 2 into 7 into 6, 5/7। बहुत सही, बहुत सही। तो cos a बाय अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/5 अल्फा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है cos b बाय बीटा के लिए, यानी कि 19/35 बीटा, और इससे आ रहा है 5/7 गामा। तो आपने को अब क्या है, अल्फा बीटा गामा के लिए जज करना है। तो सभी के लिए कॉमन फैक्टर देख लो, एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, इन सभी का एलसीएम लेने के लिए देखो, इनमें सबसे कॉमन बढ़िया सा फैक्टर जो है वो 35 दिख रहा है। तो इसको 19 एज इट इज रहने दो, इसको 5 और इंटू 5 कर लो, और 7 इंटू 5, देखो 35 में बना रहा हूँ सो दैट हम एक कॉमन टर्म को कैंसिल आउट कर सकें। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटेजी दैट आई एम अप्लाइंग, क्योंकि प्रोपोर्शनेट है ना, तो वी कैन कैंसिल आउट द थिंग्स देन। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है 35 तो हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब इससे क्या मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना दोस्तों, कि यहाँ पर 7/अल्फा का वैल्यू जो है वो मिल रहा है हमें 19/बीटा के बराबर, और वो मिल रहा है हमारे पास 25/गामा के बराबर। मतलब हमारा अल्फा कहीं ना कहीं 7 लैम्डा के फॉर्मेट में होगा। लैम्डा 1/लैम्डा कुछ भी कह लो, लैम्डा डैश लिख लो, कुछ भी कहना है वो कह लो, तो ये हमारा इस फॉर्मेट में होगा, और ये जो हमारा गामा है वो इस फॉर्मेट में होगा। तो हमारा ट्रायड अब इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो डू वी हैव एन आंसर 7 19 25? यस वी हैव एन आंसर 7 19 25, सो सॉरी, ए ऑप्शन मैचेस करेक्टली। ठीक है, इजी सवाल था यार, है ना, काफी सिंपल सवाल था। बट यस हाँ, मतलब समझ आना चाहिए कि ये कैसे अप्रोच करेंगे। शुरुआत में अप्रोच नहीं समझ आती, इसीलिए सवाल नहीं हो पाता है, और ये अप्रोच डेवलप होती है विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल पे पढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है हमारे पास, ओह नाइस, we have a lot of problems today, so that is good. We can spend more time on one or two problems, and then we can understand. Okay, so tower AV, now this is a nice question, and I think it was given in anti abhyas. I found this question somewhat better than others. I won't say that this is a very difficult question, but yes, it is somewhat better than others. A tower AB leans towards west by making angle alpha with vertical. तो अगर हम देखें तो ये टावर कुछ ऐसे होगा जिसका एंगल अल्फा विद वर्टिकल ऐसे बन रहा है। नाउ एंगुलर एलिवेशन ऑफ बी द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ टावर, तो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस लाइन दैट बी हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है टावर का, इज 60 डिग्री एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट सी ड्यू ईस्ट ऑफ ए। व्हाट इज ड्यू ईस्ट ऑफ ए, मतलब ईस्ट ऑफ ए पे हमने कोई पॉइंट लिया सी, उससे जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, अभी पॉइंट ऊपर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ही देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जब अपन एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो इसका कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है भैया।
हमने कहा ठीक है दे रहा होगा। अच्छा और क्या डेटा दिया हुआ है अपने पास कि यहाँ पर, अच्छा ये हमारा कुछ होगा, ट्रायंगल बना रहा था मैं जैसे, है ना, ठीक है घबराना मत। नेक्स्ट क्या डेटा दिया है कि एंगुलर एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम पॉइंट डी ड्यू ईस्ट। अच्छा बिफोर दैट यहाँ पर 10 फीट इसका डिस्टेंस दिया है, और एक और हमने यहाँ पर बना दी जो 20 फीट पे है, कोई पॉइंट है बी, सॉरी डी, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है ना। तो फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल ऑफ कोर्स, आप लोग देख सकते हैं, बट मुझे ये पता है कि ये वाला हाइट है लेट्स से h, ये वाली चीज क्या आ जाएगी 90 माइनस अल्फा, और लेट्स से इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan अल्फा। तो ये काफी सिंपल है, देखो h बाय एक्स प्लस 10 + 20, मुझे क्या पता है कि इसका वैल्यू है tan 45। अच्छा सबसे पहली बात, जब भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें मैंने एक बहुत ही कॉमन बात ऑब्जर्व की है, और ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि जनरली ज्यादा रिलेशन tan cot में ही चल रहा होता है, ठीक है, साइन कॉस का बहुत कम रोल आ रहा होता है। लाइक अगर इस वाले क्वेश्चन में कुछ को और पूछा होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें लेंथ ऑफ टावर ए भी पूछा होता, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइन लग जाता, पर वैसे जनरली साइन वाला काम होता नहीं है। तो बेसिकली काम किस पे हो रहा है, तो हमारा जो काम हो रहा है ना इस वाले, ये जो हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो मेजर काम है वो tan cot में हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी काफी सही से बनते हैं, और सिंपल सा बनाया होता है क्वेश्चन को, इसीलिए तो हमें पता है हम बहुत ही लिमिटेड से एरिया में वर्क कर रहे हैं, बस इसी वजह से ये चैप्टर भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं इसको सॉल्व। तो ये है 1, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 30 के बराबर। अच्छा ये 60 वाला भी रिलेशन देखो, तो h बाय एक्स प्लस 10, इसका वैल्यू है 60, दैट इज √3। अच्छा x को आप लिख लो h माइनस 30 अब ना, तो h अपॉन h माइनस 30 प्लस 10, दैट इज h माइनस 20, इसका वैल्यू इज √3। Now you know this value, can't you even find it now? And now this is very simple to find, I guess. हमें क्या निकालना है, हमें ये एंगल, ये हमें पता है अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो हमें पता क्या है कि यहाँ पर जो tan अल्फा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा x बाई एच। x अपने को पता है h माइनस 30 है, सो दिस इज h माइनस 30 बाई एच। तो अब अगर आप h निकाल लो तो काम बन गया, और h आपका निकल ही गया है। कितना आएगा h का वैल्यू, h का वैल्यू आ जाएगा h √3 माइनस 20 √3। तो h का वैल्यू यहाँ पर मैं व्हाइट में लिख देता हूँ, नहीं तो भैया बहुत खिचड़ी पक जाएगी। तो दिस इज 20 √3 माइनस अपॉन √3 माइनस 1, फैक्टराइज कर लो, रैशनलाइज सॉरी, सो दिस इज 20 √3, और यहाँ पर बनेगा 3 माइनस 1 2, और ये बन जाएगा √3 प्लस 1। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, 10 बनेगा, और जो h का वैल्यू है वो 10 √3 अपॉन √3 प्लस 1 आ रहा है। तो जो h का वैल्यू है वो आ रहा है 10 √3 इंटू √3 प्लस 1, और h माइनस 30 जो है अपॉन h, ये अपने को निकालना है। तो यार निकाल लो इसको, क्या है ये 30 प्लस 10 √3 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो दिस इज 10 √3 अपॉन 30 प्लस 10 √3, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन √3 प्लस 3। तो इसको आप लिख लो 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, अच्छा हमें ये tan अल्फा का वैल्यू है, 2 tan अल्फा निकालना है, तो 2 अपॉन √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 अपॉन √3 प्लस 1 टाइम्स √3 माइनस 1, और यहाँ पर √3 माइनस 1, तो इसका जो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट है दैट इज √3 माइनस 1। सो √3 माइनस 1 है आंसर, तो सी ऑप्शन मस्त है। तो ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था तो इक्वेशन ही, बट मतलब क्योंकि उसने एक नॉर्मल सवाल नहीं पूछा, तो मतलब मुझे इसीलिए शायद पसंद आ गया हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो आसान सवाल नहीं करना है, अपने को मुश्किल करना है। अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ये आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे बोर्ड एग्जाम में, आपने बहुत सारी किताबें करते हैं, उस समय पे बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, काश जेई के टाइम पे भी इतने मोटिवेटेड हों बच्चे।
और आप लोग तो हैं ही, तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, so the angle of elevation of a cloud that is 10 meter above the surface of lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection from that point is 60 degree। भैया ये आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो ये क्या है, हमारे पास कोई क्लाउड है, कोई लेक से 10 मीटर अबव है। ओ नहीं नहीं, ये मैंने थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लिया है। देयर इज सम क्लाउड, आई डोंट नो एट व्हाट हाइट इट इज। ठीक है, आई हैव टू फाइंड दिस हाइट अबव द लेक, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट be very careful in understanding the problem. I'll use simpler things. The angle of elevation of a cloud from point 10 meter above the surface of lake, let's say this is lake surface, so 10 meter above it I have a point, and the angle of elevation of this cloud from this point is 30 degree. At the same time मुझे ये पता है ये 10 है, let's say I call this as a height h, I know its reflection। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या है, देखो ये लेक विल एक्ट एज अ मिरर, तो यहाँ कहीं इसका रिफ्लेक्शन बन रहा होगा। सो इफ इट इज क्लाउड सी, देन ये हो जाएगा सी डैश। तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा h+10, और हमें पता है ये जो है दिस इज 60 डिग्री। तो अब आपको हाइट्स पता है, आप क्या करो, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो और इसको आप कुछ x मान लो। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ क्लाउड अबव लेक, तो h डैश निकालना है। तो h आप h निकाल लीजिए, h डैश आप 10 ऐड कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो h बाय एक्स जो है वो आ जाएगा tan 30, दैट इज 1/√3, और h प्लस ये कितना है, h+10 सो h+20 डिवाइडेड बाय x है, इसका वैल्यू कितना है tan 60, दैट इज √3। सो अब तो ये काफी सिंपल हो गया, आप इसको x को क्या लिख दोगे, h टाइम्स √3, तो ये h+20 आ जाएगा 3h के बराबर, तो 2h का वैल्यू आ जाएगा 20 और h का वैल्यू आ जाएगा 10। अब इस बात का ध्यान रखना कि h का वैल्यू अगर 10 है तो ये वाली चीज है 10, पर आंसर हमारा 20 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में 10 अगर आ जाता तो बहुत सारे दुनिया ऐसे फैल जाती और इसको 10 पे आंसर को लगा देती, आधे नंबर तो उन लोगों के चले जाते। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस बनाने में आलस कर गया है जो भी है एग्जाम सेटर एनटीए का, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा है एग्जाम में ऑप्शन 10 भी रहेगा, कि इस क्वेश्चन में नहीं है पर एग्जाम में रहता है, इस बात का ध्यान रखें, खास ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल। ओके, दिस इज अनदर गुड प्रॉब्लम। वी हैव वेरी नाइस प्रॉब्लम्स लेफ्ट। These problems are really very special. Okay, so ABC is a triangular park with AB equal to AC is equal to 100 meter. Okay, nice. तो हमारे पास एक पार्क है A B C, AB equal to AC is equal to 100 meter। ये 100 मीटर है और ये 100 मीटर है। नाउ नेक्स्ट है कि a TV tower stands vertically at the midpoint of BC। तो अब ये 100 है, ये 100 है, मतलब ये आइसोसेलेस है, तो हमें वैसे तो ये पता है कि ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, तभी तो कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से अगर आप देख लें तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ही ये 90 डिग्री ऑटो, सॉरी साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये डायरेक्टली आ जाएगा, बट यस हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है आइसोसेलेस है, हम लगा सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट से अपने पास क्या है कि ऐसे है ये कुछ, है ना, तो इस तरीके से यहाँ से 100 मीटर है, यहाँ से 100 मीटर है, और यहाँ पर अपना कोई टावर ऐसे खड़ा हुआ है, ये देखा ही होगा आप लोगों ने। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए बी एंड सी, तो ए से ये है बी और सी, अब बी और सी से तो ये सिमेट्रिक है ना, ये तो अपने को पता है ये मिड पॉइंट है, अगर ये a/2 है तो ये भी तो a/2 है। ठीक है, और ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहां से ये एंगल है 45 डिग्री। अपने को क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, तो हमें h निकालना है।
तो बहुत ही सिंपली बोलें तो h अपॉन a/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। तो h का वैल्यू हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ a। तो ये √3/2 टाइम्स ऑफ a दिया हुआ है और ये हमारे पास एक हाइट है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अगर हम ये निकाल पाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेट्स से दैट दिस इज a/2। so do we have another thing given, any other thing that is given to us? No, I don't think so. Okay, yes, we know that one thing, that this length, since it is 45 डिग्री, ठीक है, तो ऐसा कुछ वर्टिकल प्लेन में ऐसा कुछ बन रहा होगा कि a है, ये 45 डिग्री है, ये हमारा h है, तो ऑफ कोर्स ये भी h होगा, तो मतलब ये भी h होगा। और इसका वैल्यू कितना है, √3/2a। दिस इज √3/2a, राइट। तो इस एंगल को देखो अब, तो यहाँ पर ये रूट, इसका जो रेशो है, लेट्स से दिस इज d, तो AD/B, d का वैल्यू कितना है, ये √3 है। तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है ये आ जाएगा tan60। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल जब 60 डिग्री हो गया तो a/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। सही है ना, ये 50 हो जाएगा, cos 60 हाफ। a/2 का वैल्यू 50 है, तो √3 टाइम्स 50, बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होना था। इट इज क्वाइट इजी आई गेस, और सभी से हो गया होगा। आई होप सभी इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। ठीक है, चलो भाई, अब फिर नेक्स्ट सवाल पे मूव करें। तो अगला सवाल करते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, मतलब मुझे आज सारे मैंने क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो आपको रिवाइज करा दें, बस और कुछ नहीं। सो इज द डिस्टेंसेस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इन सर्कल with the sides alpha is alpha b alpha beta and gamma, then what is the value of r? Okay, so we have been given a triangle, let's say I call it triangle ABC. The distance of the vertices from point of contact, what does this mean कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये सर्कल है। ओके, और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद साइड्स भी अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये वाला है साइड अल्फा, ये है बीटा, ये मतलब एक, ये मुझे दिया नहीं है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। और ये मैंने कैसे अज्यूम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब उस सीक्वेंस में ही दिए होंगे जनरल ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव में। फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट। सेकंड थिंग दैट आई थॉट कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो अल्फा और इसका भी वैल्यू हो जाएगा अल्फा, और ये बीटा और ये भी बीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये गामा होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, सो हो जाएगा ट्वाइस। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, दैट इज 2s। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, s है। हमें निकालना है r, ये r निकालना है, तो r होता है s माइनस से tan a/2। अच्छा, a क्या है, बीटा प्लस गामा, और s तो हमें पता ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और tan ऑफ a/2 को हमने निकालना है, तो हमें ऐसा करते हैं, यहाँ से इसी से निकाल लेते हैं ना a/2, यहाँ से अपने को पता है। तो tan a/2 का एक फॉर्मूला होता है रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। सही है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो बस इसको पुट कर देने का। s माइनस बी, व्हाट इज b, s माइनस ए का वैल्यू मुझे पता है कितना है, गामा, r कितना हो जाएगा गामा, और स्क्वायर रूट में s माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा यानी कि यहाँ बच गया बीटा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक अल्फा बच जाएगा s माइनस सी करते ही। सी क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ गामा बचना चाहिए, मैं बीटा क्यों बचा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। s माइनस ए पे क्या बच रहा है अपने पास, s माइनस ए पे हमारे पास अल्फा बचेगा ना, s माइनस ए पे। ठीक है, यहाँ गामा बचेगा। तो अब हमारे पास क्या बचा,
आएगा यहाँ, ठीक है। और एस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एस माइनस ए का वैल्यू है अल्फा, तो दिस वैल्यू विल बी अल्फा बीटा गामा बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर रूट। सो बी ऑप्शन मैचेस, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आया उनको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उनको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मैंने बस वही लगाए हैं। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आया उनके लिए मैं यही कहूंगा कि लेक्चर को ध्यान से देखें दोबारा, और क्या, ठीक है, बिकॉज ये सब तो अभी अभी कराया था। नेक्स्ट, okay, so this is a very nice problem and the last problem of this session. This is a very interesting problem. A car is moving at a constant speed. देखो यहाँ पर you have to read the question very carefully. If you don't read this question properly, you might lose some marks. This is a very simple problem. All you need to do is to focus clearly what is your aim and what are actually the dimensions. Like because यहाँ पे देखो, a car is moving at constant speed at angle theta east of north. What is this east of north? अगर यहाँ पर नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता और लोग ऐसा कुछ मार्क कर दें तो सत्यानाश हो जाएगा। और ऐसे सवाल जेईई मेन में आया है इस वाली जो शिफ्ट हुई है अभी, इसीलिए दिस सवाल वाज पिक्ड बाय मी, ठीक है। ये सवाल नहीं आया, कुछ और सवाल था ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का। मुझे ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट याद आया कि ये पूछा हुआ था, तो मैंने ये रख लिया लास्ट में जैसे में, ठीक है। तो अ कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, सही कर रहा हूँ ना, वेस्ट, हाँ हाँ सही है, चलो बहुत बढ़िया। मुझे कई बार भूल जाता है, मुझे भी तो डायमेंशन याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं। Okay, so observations of car are made from a fixed point. It is due north at some instant. Okay, leave it. Let us take it lightly. A car is moving at an angle theta east of north. So north से theta east पे ये कुछ angle इस trajectory में move कर रहा होगा. This is our motion. This is our path of car. Okay, so observations of car are made from a fixed point and it is due north at some instant. So it is due north at some instant. Let's say this is due north at this very instant. Let us say this is our point. Okay. Rather, I will just mark it in this manner. Let's say this is our point P. This is the point. At observation, it is due north at some instant. It will be due north at this instant. नाउ ऑफ कोर्स ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये यहाँ इस पाथ से जा रही है तो यहाँ जैसे ही सही नॉर्थ पे होगा वो कार, इधर कहीं पे बनाओगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी, साउथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 मिनट्स अर्लियर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, आई विल कॉल इट्स स्पीड v, एंड 10 मिनट्स अर्लियर इट्स बेयरिंग वाज अल्फा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसका बेयरिंग मतलब इसका जो ऑब्जर्वेशन था एंगल का वो बता रहे हैं। तो लेट्स से 10 मिनट्स पहले ही यहाँ कहीं था और 10 मिनट्स बाद ही यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज अल्फा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो यहाँ पर इस समय नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। अल्फा इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड आफ्टर 10 मिनट्स दिस इज बीटा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। So in the first impression this might look confusing, but yes, it is very simple. All you need to do is to focus once. First of all, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो आप ये देख सकते होंगे ये एंगल होगा थीटा, और जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो गया थीटा, और ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो मैं इस फिगर को यहाँ जैसे क्लियरली बता देता हूँ, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये एंगल अपना थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ पाई माइनस थीटा। अच्छा, रेड से मैं सॉरी येलो से मैं बीटा मेंशन कर देता हूँ, अल्फा मेंशन कर देता हूँ, और अब अपने पास ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, यानी कि हमें सम ऑफ एंगल्स को मेंशन करना है, तो इन प्लस सम एक्स, इसका वैल्यू होगा पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बनाना है तो उसके लिए अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा
ये पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस बीटा। चलो देखते हैं थोड़ा सा, मतलब क्या क्या पता है हमें। हमें पता है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 10 मिनट्स अर्लियर में इसने ये डी 10 माइनस लिख देता हूँ, उसे मैं डी 10 माइनस लिख दो और ये डी 10 प्लस हो जाएगा। तो वी नो दैट डी 10 माइनस इज इक्वल टू डी 10 प्लस। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो ऐसा करते हैं, डी 10 प्लस इसको एज इट इज रखते हैं और इन छोटे वाले ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक साइड कॉमन है और दो साइड इक्वल है। तो कहीं ना कहीं साइन रूल अगर इस जैसे सिनेरियो में लगे तो हमारे पास थीटा अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इट इज एब्सोल्युटली हिट एंड ट्रायल, but yes, my motive was to just make you understand these notations, and I guess I have made that, so that was my concern. But yes, we'll solve this problem. Of course we are supposed to, so let us do it. So my d10 minus, I'll do it on next page, okay, don't worry. Okay, now d10 minus जो है अपॉन साइन अल्फा a अपॉन इसके कोरिस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली साइड चाहिए। देखो मेरा रिलेशन इनकी इसकी और इसकी वजह से ही बनेगा। तीसरे वाले का शायद रोल ना हो, पर मैं पूरा लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। पी इसको ले लो ए और इसको ले लो बी, ठीक है, और इसको ले लो लेट्स से डी। तो हमें पता है ए डी का वैल्यू डी बी के बराबर होगा। ये हमने बाद में लिखा है ना, तो मतलब कंफ्यूज मत हो ना। और क्या पता है अपने को कि हम अभी ट्राइंगल पी ए डी में साइन रूल लगा रहे हैं। तो डी माइनस और इज इक्वल टू क्या है, पी डी टाइम्स पी डी अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ओके, इज इक्वल टू पी डी को छोड़ो, अब यहाँ पर एपी अपॉन कितना आ गया, साइन थीटा। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल से साइन रूल लगा दी। अच्छा, नेक्स्ट ट्राइंगल से भी यही करना है अपने को, तो ये आ जाएगा पी बी अपॉन, अच्छा पी बी पी डी और पी ए, ये है ना तीन अपने, पी ए नहीं सॉरी डी 10 प्लस है यहाँ पे। तो डी 10 प्लस के कोरिस्पॉन्डिंग है साइन बीटा, पी बी के कोरिस्पॉन्डिंग जो है, पी बी के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा है, पाई माइनस थीटा, तो दिस इज साइन पाई माइनस थीटा। तो सॉरी, ये पी बी के कोरिस्पॉन्डिंग है, पी डी के कोरिस्पॉन्डिंग है, चलो जिसके भी। और यहाँ पर ये आ जाएगा पी डी अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब हमें कॉमन चीजें देखनी है कि यहाँ पर हमें क्या क्या नोन है। हमें ये रिलेशन काम आएगा और ये रिलेशन काम आएगा शायद। ऐसा करते हैं अपन, पी डी अपॉन डी 10 माइनस का वैल्यू इक्वेट करते हैं पहले। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा इज साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, वन थिंग। और पी डी अपॉन डी 10 प्लस हम इधर से उठाते हैं, यहाँ से this was from this and yes this is from this, so pd upon d10 plus is sine of theta minus beta upon sin beta, ठीक है। अब हमें पता है कि d10 माइनस जो है वो d10 प्लस के बराबर है, तो इनका pd अपॉन समथिंग दिस इज इक्वल टू pd अपॉन, लेट्स से इसको हम x लिख लेते हैं, तो x या इसको a लिख ले, कुछ भी लिख लो, अल्फा लिख लो, ठीक है, अल्फा अल्फा आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो हमारे इसके कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स भी बराबर हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, इससे बहुत फायदा बताऊं क्या हुआ, कि हमें थीटा और अल्फा बीटा में रिलेशन मिल गया, और शायद अब डायरेक्टली आंसर निकलता है। मुझे थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। साइन बीटा क्यों आ रहा है फील, क्योंकि अब आप देखो इसमें आप ओपन करने की कोशिश करो, तो साइन थीटा कॉस अल्फा है, तो ये कॉट अल्फा बन गया, प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, इज इक्वल टू इस वाली साइड में साइन थीटा कॉस बीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉट बीटा माइनस कॉस थीटा साइन बीटा, ये आ गया, ठीक है। ओके, तो यहां से अपने पास आ गया 2 कॉस थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। हमें क्या निकालना है, टैन थीटा। अरे भाई साहब निकल गया है, बहुत सही। टैन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब देखो फर्स्ट टाइम में ये पिक करना मुश्किल होता है कई बार, पर हाँ ऑफकोर्स साइन रूल है तो आना चाहिए, ये तो आसान सवाल है उल्टा।
ठीक है। और देखो सब साइन रूल भी लग गया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आना चाहिए ना। क्वेश्चन तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का ही था, पर साइन रूल लगा लिया ना, तो बस समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो 2/cot बीटा माइनस कॉट अल्फा, सी ऑप्शन मैचेस। ठीक है, हो गया सवाल खत्म। तो भाई थैंक यू, और आई होप दैट you understood what I taught today. I hope you had a great time watching this video and you understood the major concepts that were involved. Thank you everyone for watching this video, and I hope you had a great time. Jai Hind and bye. Do make sure to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Intense Investigation. Subscribe to another problem solving channel on Advanced, where I teach advanced content as well. Of course, I teach it on advanced content here as well. But yes, currently because आप लोगों का मेज आ गया, तो I have to focus advanced to somewhere else, and yes, you can refer to those videos. So links आपको सारे description में मिल जाएंगे. Whatever links you'll find very important links in the description. Do make sure to check them. And also, thank you everyone for watching this video. I hope you had a great time. Stay safe and goodbye.